Hello everyone, welcome to Global Online Classes. Myself Nihal sir. In today's lecture, we are going to discuss 50 plus most expected MCQs for current affairs sessions for the unit ICT, higher education and environment. These are the most important questions which are very important in the perspective of your examination. So please watch this video to the end, and if you are watching this video for the first time, please subscribe the channel and like the video. Paper 1 full course, in which we are providing you complete video lectures, complete syllabus notes, mock tests, PYQs with explanation, doubt clearing session and marathons for your complete preparation of paper 1. Okay, if you want to crack this examination, join now and start preparing for your examination. If you want to join, please contact on this number which is given on the bottom of the screen, you can see. And most important thing is only WhatsApp will be available for this number. No normal call, no normal message, only WhatsApp calls and WhatsApp message only available for this number. Okay. For paper 2 also, we are come up with the full course in which we are going to provide you complete video lectures, complete syllabus notes, mock test, PYQs with explanation, doubt clearing sessions, marathons. And if you are joining paper 2 commerce full course, the paper 1 will be completely free of cost. Okay, that means if you are purchasing paper 2 course, paper 1 will be free of cost for you. Okay, the notes, the lectures, the mock test, all the things for paper 1 will be free of cost with the paper 2 course. Clear? So join now and start preparing. Let's crack this examination in very first attempt. Which education institution rank first in NIRF ranking 2021? NIRF जो है ये रैंकिंग डिसाइड करता है इंस्टीट्यूशंस की. ओके, तो हर एक फील्ड में रैंकिंग होती है. रिसर्च फील्ड हो गया, इंजीनियरिंग फील्ड हो गई, इस तरह के अलग अलग फील्ड में रैंकिंग होती है. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है इंजीनियरिंग फील्ड के बारे में. ओके, IIT बॉम्बे, IIS, IIT दिल्ली, IIT मद्रास है. तो इस रैंकिंग के हिसाब से 2021 के इंडेक्स के हिसाब से who is the first institution according to NIRF ranking. NIRF अगर आपको पता नहीं होगा तो ये है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है. ओके, सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? IIT बॉम्बे, IIS, IIT दिल्ली या फिर IIT मद्रास? सो करेक्ट आंसर इज IIT मद्रास. ओके, IIT मद्रास जो है इसका फर्स्ट रैंक आया है अकॉर्डिंग टू 2021 रैंकिंग. ओके, next question. Researchers of IIT Kharagpur have developed food packaging material using which material? Okay, IIT खड़गपुर में कुछ स्कॉलर्स ने एक ऐसा फूड पैकेजिंग डेवलप किया था जो कि एक नेचुरल मटेरियल से बनाया गया था. तो वो जो मटेरियल था वो कैसा मटेरियल था? प्लास्टिक मटेरियल था, नैनो कंपोजिट था, कुकुम्बर पील्स था या फिर बनाना पील्स था? तो जैसे कि मैंने बोला नेचुरल मटेरियल था, तो यहाँ पे कुकुम्बर हो सकता है या फिर बनाना पील्स हो सकता है ना. तो दोनों में से कौन सा है? तो कुकुम्बर पील्स वाज यूज्ड फॉर द डेवलपिंग द फूड पैकेज. ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, researchers at IIT Kharagpur have developed cellulose nanocrystals from cucumber peels. Okay, raising the possibility to create environment friendly food packaging materials in future. मतलब फ्यूचर में एक ऐसे मटेरियल जो कि environment friendly हो सकता है अपने फूड पैकेजिंग के लिए. अभी जो फूड पैकेजिंग होती है वो प्लास्टिक फूड पैकेजिंग होती है जो कि हार्मफुल होती है अपने एनवायरमेंट को, है ना. तो ऐसा कुछ पैकेजिंग हो जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, अपने एनवायरमेंट को हार्म भी ना हो, है ना. ऐसे कुछ फूड पैकेजिंग इन्होंने डेवलप किया था. किसने किया था? IIT खड़गपुर. ओके, और किस चीज से किया था? कुकुम्बर पील्स. ठीक है. The cellulose nanomaterial developed from raw cucumber waste by Professor Jayita Mitra and the research scholar N. Sai Prasanna. ठीक है, ये दोनों नाम याद रखना जो कि IIT खड़गपुर से है. इन्होंने क्या किया था? They had addressed this challenge of finding an environment friendly substitute for फूड पैकेजिंग मटेरियल्स. अभी जो प्लास्टिक फूड पैकेजिंग मटेरियल्स होते हैं उसके लिए सब्स्टिट्यूट जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली पैकेजिंग हो सकती है, ऐसा पैकेजिंग उन्होंने डेवलप किया था जो कि कुकुम्बर पील से बनाया गया है.
Okay. Next question. Artificial intelligence and machine learning has been introduced recently in which portal of MSME industries? MSME मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इसकी जो मिनिस्ट्री है उसने एक पोर्टल लॉन्च किया था जिसमें क्या किया गया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग जो है उसे इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ऐसा कौन सा पोर्टल था? उस पोर्टल का नाम क्या था? प्रगति, प्राप्ति, पर्यावरण या फिर चैंपियंस? तो वो था चैंपियंस। सो चैंपियंस पोर्टल जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग भी इंट्रोड्यूस की गई थी। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के हाथ से इसे लॉन्च किया गया था 1 जून 2020 को। ठीक है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है ये क्या है? डिफिकल्ट सिचुएशन में एमएसएमई जो है इन्हें फाइनेंस, रॉ मटेरियल, लेबर, परमिशन, ये सारे चीजों में हेल्प करना। उसके बाद कैप्चरिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर, और आइडेंटिफाई द स्पार्क्स। स्पार्क्स इन एग्जांपल क्या होता है कि ब्राइट एमएसएमईज हु कैन विथस्टैंड एट प्रेजेंट एंड बिकम नेशनल एंड इंटरनेशनल चैंपियंस। मतलब नेशनली या फिर इंटरनेशनली कुछ कॉम्पिटिटिव बने एमएसएमईज अपने इंडिया के, इसमें हेल्प करती है ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें जो है इसमें हेल्प करती है एमएसएमईज को। कौन सा पोर्टल है? चैंपियंस। ये चैंपियंस पोर्टल पे एमएसएमई जो भी अपने स्मॉल एंटरप्राइजेस है उन्हें रजिस्टर करना होगा, उसके बाद ये सारे बेनिफिट जो है उन्हें मिलने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिविल सर्विस डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन। सिविल सर्विस डे जो है वो इंडिया में कब सेलिब्रेट किया जाता है? 21 अप्रैल, 24 अप्रैल, 21 जून या फिर 7 जुलाई? ठीक है, 7 जुलाई को मेरे ख्याल से कोई डे सेलिब्रेट नहीं किया जाता, मे बी चॉकलेट डे समथिंग है, वर्ल्ड चॉकलेट डे। 21 जून को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। ठीक है, योगा डे करके 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल पंचायती राज डे। ठीक है, तो ये तीनों तो एक्सक्लूड हो गए, तो बचा कौन सा? 21 अप्रैल। तो सिविल सर्विस डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 21 अप्रैल को। ठीक है, दिस डेट इज चूजन टू commemorate the day when first Home Minister of Independent India, Sardar Vallabhbhai Patel, addressed the probationers of Administrative Services Officer in 1947. ठीक है, at Metcalfe House, Delhi. Referred to civil servant as the steel frame of India. ठीक है, the first such function was held in Vigyan Bhavan, New Delhi, 21 April 2006. Okay, as part of Civil Servant Day, Prime Minister's awards for excellent in public administration are presented to district implemented units for implementation of priority program and innovation categories. ठीक है, अगर कोई डिस्ट्रिक्ट में कोई आईएएस ऑफिसर अच्छी कामगिरी करता है तो उसे प्राइम मिनिस्टर द्वारा अवार्ड भी दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज चिपको मूवमेंट फर्स्ट स्टार्टेड बाय। ठीक है, चिपको मूवमेंट सभी को पता ही है, बहुत ही फेमस मूवमेंट है, आंदोलन है जो कि 1970s में शुरू हुआ था, समथिंग 1970s के बीच में। सो ये किसने स्टार्ट किया था? अरुंधति रॉय, मेधा पाटकर, इला भट्ट या फिर सुंदरलाल बहुगुणा? ठीक है, तो चिपको मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुआ था 1970 समथिंग में, और इसे सक्सेसफुल बनाया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। चिपको मूवमेंट और चिपको आंदोलन ये एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट ऑफ इंडिया है। ठीक है, अगर चिपको मूवमेंट के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा कि ये किस तरह का आंदोलन था, तो ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट था। ठीक है, मतलब फॉरेस्ट जो है उसे कंजर्व करने के लिए, फॉरेस्ट को बचाने के लिए ये आंदोलन किया गया था। ठीक है, द मूवमेंट ओरिजिनेटेड इन 1973। 1973 में ओरिजिनेट हुआ था। कहाँ पे हुआ था? हिमालयन रीजन में हुआ था, जो उत्तराखंड है वहां पे। ठीक है, उसमें से थोड़ा सा पार्ट उत्तर प्रदेश का भी है। ठीक है, तो ये पॉइंट तीनों याद रखना। 1973 में हुआ था, हिमालयन रीजन उत्तराखंड में हुआ था, जिसमें से थोड़ा पार्ट उत्तर प्रदेश का भी है। ठीक है, इट वेंट ऑन टू बिकम अ रैलिंग पॉइंट फॉर मेनी फ्यूचर एनवायरमेंटल मूवमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब एनवायरमेंटल मूवमेंट्स कुछ हुए वर्ल्ड में, उसमें भी ये चिपको आंदोलन बहुत ही इम्पैक्टफुल था। ठीक है, मतलब ये जो आंदोलन हुआ था इंडिया में, ये बहुत ही बड़ा आंदोलन था जिसका इम्पैक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड हो चुका था।
Sundarlal Bahuguna, a Gandhian activist who gave the movement a proper direction and successful meant, मतलब ये जो आंदोलन स्टार्ट हुआ था उसे एक प्रॉपर डायरेक्शन देने वाला इंसान कौन था, तो सुंदरलाल बहुगुणा। मतलब इनकी वजह से ये आंदोलन जो है उसे एक सक्सेसफुल मीट मिला, या फिर एक इम्पैक्टफुल आंदोलन ये बन पाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट टू प्रपोज अ लेजिस्लेशन टू प्रोटेक्ट कैसल। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसल को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेजिस्लेशन प्रपोज किया गया है अपने नॉर्थ ईस्टर्न की एक स्टेट में। ठीक है, वो स्टेट कौन सी है? मिजोरम, असम, मेघालय या फिर सिक्किम। तो वो है असम। ठीक है, असम स्टेट जो है इसने एक लेजिस्लेशन प्रपोज किया था अपने पार्लियामेंट में फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कैसल्स। ओके, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma tabled proposed legislation to protect castles in the state through the Assam Castle Preservation Bill 2021. ओके, 2021 में कैसल्स प्रिजर्वेशन बिल के अंडर, ठीक है, असम कैसल प्रिजर्वेशन बिल, इसके अंडर कैसल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए असम चीफ मिनिस्टर ने एक लेजिस्लेशन जो है प्रपोज किया था। ठीक है, अदर स्टेट सच एज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका, ठीक है, यहाँ पे मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका हैव सिमिलर लॉज। मतलब ये स्टेट में जो है ये ऐसे ही सेम सिमिलर लॉज जो है वो पहले से है। द बिल सीक टू प्रोटेक्ट कैसल बाय रेगुलेटिंग देयर स्लॉटर, कंजम्पशन एंड प्रिवेंटिंग देयर इलीगल ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ये सारी चीजों से बचने के लिए, इसे प्रिवेंट करने के लिए, इससे प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो प्रपोजल है उसे दिया गया था। ठीक है, तो ये जो SBM U 2.0 है वो है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। ठीक है, और अमृत 2.0 ये है अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसे प्राइम मिनिस्टर जी ने लॉन्च किया था। ये स्कीम जो है इसे इंप्लीमेंट करती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, जैसे 2.0 ये अभी का वर्जन है, इससे पहले वाला जो वर्जन था इसे भी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये मिनिस्ट्री जो है उसे इंप्लीमेंट करती थी। ठीक है, SBM U 2.0 का एम जो है वो है गार्बेज फ्री करना सारे सिटीज को। ठीक है, एंड इंश्योर ग्रे एंड ब्लैक वाटर मैनेजमेंट इन ऑल सिटीज। इसका आउटले जो है वो है SBM U 2.0 1.41 लाख करोड़। उसी के साथ अमृत 2.0 का एम जो है वो है प्रोवाइडिंग 100% कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई टू ऑल हाउस होल्ड इन अराउंड 4700 अर्बन लोकल बॉडीज। ठीक है, 4700 तक इनका एम है जो लोकल बॉडीज है वहां पे 100% कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई होना चाहिए। ठीक है, उसी के साथ 100% कवरेज ऑफ सेवरेज एंड सिप्टेज इन 500 अमृत सिटीज। ठीक है, तो ये था SBMU मतलब स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, और अमृत 2.0 मतलब अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, so next question is, when is the world day against the death penalty observed every year? Okay, world day against the death penalty, most of you might not knowing this day। तो ये जो डे है वो एवरी 10th अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। ओके, 10th अक्टूबर इज द राइट आंसर। इस डे को इसलिए ऑब्जर्व किया जाता है कि इसका एम जो है वो है एबॉलिशिंग द डेथ पेनल्टी, है ना। डेथ को लेकर पेनल्टी जो होती है ना, उसे कम करने के लिए इसे ऑब्जर्व किया जाता है। इस डे को कब किया जाता है? एवरी 10th अक्टूबर। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इसके बारे में हम जान लेते हैं। एवरी 10th अक्टूबर वर्ल्ड डे अगेंस्ट डेथ पेनल्टी जो है उसे ऑब्जर्व किया जाता है। इसका इस साल का थीम जो था वो फोकस किया था सेफगार्डिंग द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड, है ना। वुमेन्स या फिर गर्ल्स की जो हेल्थ एंड राइट्स होते हैं उसे सेफगार्ड करने के लिए इस साल का थीम जो है उस पर फोकस किया था। अकॉर्डिंग टू एमनेस्टी इंटरनेशनल 2020,
death penalty report, more than 2/3 of the world has now abolished the death penalty in law or practices. है ना, वर्ल्ड का जो 2/3 एरिया है या फिर 2/3 पार्ट जो है उसने एबोलिश किया है डेथ पेनल्टी, है ना। डेथ को लेकर जो पेनाल्टीज होती है या फिर रूल्स होते हैं जिसमें कि डेथ दी जाती है ना, उस लॉ को, उस प्रैक्टिसेस को एबोलिश किया है कुछ पार्ट ऑफ वर्ल्ड में। As many as 108 countries have completely abolished the death penalty for all crimes. As per the report, at least 483 people were known to have been executed in 2020. है ना, मतलब 108 कंट्रीज जो है उसने अब तक एबोलिश किया है डेथ पेनल्टीज को, है ना। तो ये क्या है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट द डेथ पेनल्टी, मतलब डेथ पेनल्टीज के जो रूल्स होते हैं या फिर कुछ क्राइम्स होते हैं जिसमें डेथ पेनल्टीज दी जाती है, ऐसे प्रैक्टिसेस को या फिर ऐसे लॉज को एबॉलिश करना इसका मेन फोकस है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज अप्रूव्ड अ डिस्प्यूट फॉर अवॉइडेंस मैकेनिज्म थ्रू इंडिपेंडेंट इंजीनियर, आईई, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी या फिर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने ये अप्रूवल दिया था डिस्प्यूट अवॉइडेंस मैकेनिज्म थ्रू इंडिपेंडेंट इंजीनियर, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which initiative has been launched by the government of India for preschooling kids? NDAR, सफल, विद्या प्रवेश, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट सिस्टम। सो NDAR जो है वो है नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर, जिसे प्राइम मिनिस्टर जी ने फरवरी 2021 में लॉन्च किया था, अनाउंस किया था, टू बूस्ट द डिजिटल आर्किटेक्चर फॉर एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। दूसरा है सफल, सफल का मतलब है स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग, है ना। ये कॉम्पिटिटिव बेस्ड असेसमेंट है फॉर द ग्रेड्स 3, 5 एंड 8, जिसे सीबीएसई ने अनाउंस किया था, इंट्रोड्यूस किया था। दूसरा है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट सिस्टम, ये एक ऑनलाइन वर्चुअल स्पेस है जो कि प्रोवाइड किया जाता है स्टूडेंट्स को टू डिपॉजिट एंड एक्यूमुलेट द क्रेडिट्स दे अर्न ड्यूरिंग देयर कोर्स ऑफर्ड इन इंडियन यूनिवर्सिटीज, ठीक है। और विद्या प्रवेश इसका राइट आंसर है, जो प्री स्कूल के लिए, प्री स्कूल किड्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू मैन्युफैक्चर फॉसिल फ्री स्टील? फॉसिल फ्री स्टील बनाने में कौन सी सबसे पहली कंट्री ने इनिशिएटिव लिया है? जर्मनी, इंडिया, जापान या फिर स्वीडन? तो वो है स्वीडन। स्वीडन कंट्री ने सबसे पहले फॉसिल फ्री स्टील जो है उसका मैन्युफैक्चर स्टार्ट किया है वर्ल्ड। Sweden has become the first country in the world manufacture fossil-free steel, which is also known as green steel. Okay, ये fossil free steel जो है उसे green steel नाम से जाना जाता है। Green steel has been developed by hybrid technology, and the first delivery was done to Volvo AB, ठीक है, as a trial run. This initiative was in process since 2016. Full-scale production will begin from 2026. इसे स्टार्ट किया था 2016 में और इसका फुल स्केल प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट होगा 2026 में। ओके, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, रिप्लेसिंग coking coal with hydrogen is expected to reduce emission from steel making by at least 90%. ओके, स्टील मेकिंग में जो भी एमिशन होता है उसे 90% ये कम करने वाला है। कौन? ग्रीन स्टील प्रोसेस। ओके, तो इसका नाम याद रखना, ग्रीन स्टील प्रोसेस। उसके बाद किसने स्टार्ट किया है? स्वीडन ने किया है। उसका सबसे पहले डिलीवरी वोल्वो एबी को हुआ था एज ए ट्रायल रन। इसका फुल स्केल प्रोडक्शन जो है वो 2026 में स्टार्ट होने जा रहा है ना, और लॉन्च हुआ था 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री डेवलप्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर ट्री? कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्री, सोलर ट्री बनाया है या फिर विकसित किया है? ठीक है, चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है या फिर इंडिया है? तो सबसे बड़ी सोलर ट्री बनाने वाली जो कंट्री है वो है अपनी इंडिया। ओके, तो ये सोलर ट्री क्या है? टू प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, एक रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए CSIR, CMERI इन्होंने डेवलप किया था वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर ट्री, जो कि दुर्गापुर में है, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, ये किसने डेवलप किया था? प्रोफेसर डॉक्टर हरीश हिरानी, जो कि CSIR, CMERI के डायरेक्टर हैं।
ये CSIR और CMERI क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च मतलब CSIR और सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब CMERI। ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर ट्री इज लोकेटेड इन डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो दुर्गापुर आ सकता है, मुंबई आ सकता है, चेन्नई आ सकता है, बैंगलोर। तो उसमें हमें क्या सिलेक्ट करना है? दुर्गापुर, जो कि वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, What is the purposed name of National Teacher Education Framework 2021? ओके, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा रूपरेखा 2021, ये जो है इसका प्रास्ताविक नाम क्या है? ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE 2021 ये हो सकता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन NCFTE 2021 ये हो सकता है, या फिर नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स NPST, या फिर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी PSSB। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? व्हाट इज द प्रपोज्ड नेम ऑफ नेशनल टीचर एजुकेशन फ्रेमवर्क? सो राइट आंसर इज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन मतलब NCFTE। आप लोग ये याद रखना, NCFTE 2021। यहाँ पे क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं आपको बता देता हूँ। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NCFTE 2021, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, है ना। और इसका प्रपोज्ड नेम किसका? नेशनल टीचर एजुकेशन फ्रेमवर्क 2021 का ये है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन मतलब NCFTE। ओके, तो यहाँ पे रिगार्डिंग NCFT 2021 कुछ पॉइंट दिए, हम देखते हैं क्या बोला गया है। NCTE के बारे में बोला गया है कि ये जो NCFTE है 2021, इट इज अपग्रेडेड वर्जन ऑफ NCTE। ठीक है, ये नया फ्रेमवर्क है रिगार्डिंग टीचर एजुकेशन सिस्टम। ये टीचर एजुकेशन सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए नया फ्रेमवर्क लाया गया है NCFTE 2021, है ना। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि NCFT 2021 जो है वो फॉर्मुलेट किया गया है NCTE के द्वारा। ठीक है, NCTE के द्वारा ये फॉर्मुलेट किया गया है विद द कंसल्टेशन ऑफ NCERT। ओके, ये याद रखना, NCTE ने इसे फॉर्मुलेट किया है और NCERT ने इसे कंसल्ट किया है। ये जो NCFTE 2021 ये हर 5 से 10 साल में रिवाइज होता है, अपग्रेड होता है। ओके, अपग्रेड क्या होता है? अगर टीचर एजुकेशन में कुछ नीडफुल इमर्जिंग डालना होगा या फिर नीडफुल कुछ पॉइंट्स से अगर अपग्रेड करने होंगे तो ये हर 5 या 10 साल में इसे अपग्रेड करते रहेंगे। ओके, यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है, NPST जो है, ये NPST क्या है? NPST इज अ पब्लिक स्टेटमेंट ऑफ व्हाट कंस्टिट्यूट टीचर क्वालिटी। ठीक है, टीचर क्वालिटी के रिगार्डिंग अगर कुछ चीजें हमें जाननी हो तो वो कहाँ पे हम जान सकते हैं? तो NPST में। ठीक है, ये NPST का एक मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? 21st सेंचुरी में जो टीचिंग क्वालिटी है ना, टीचिंग क्वालिटी क्या करती है? एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करती है ना। अगर टीचर्स एजुकेशन अच्छा होगा तो एजुकेशन सिस्टम का जो आउटकम है, स्टूडेंट्स का जो आउटकम है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा, है ना। तो ये ओवरऑल इम्प्रूवमेंट का इनिशिएटिव रहा है NCTE के द्वारा विथ न्यू comprehensive framework, that is NCFTE 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द न्यू पैटर्न ऑफ 10+2 एजुकेशन पॉलिसी 2021, है ना। एजुकेशन पॉलिसी का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। ओके, 10+2 एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है इसका पैटर्न क्या है ना। 5+3+3+4 है, 5+3+4+3 है, या फिर 5+4+3+3 है, या फिर 5+4+3+4 है। ओके, सो ये जो नया पैटर्न है, ये नई एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 में आई थी, इसका पैटर्न जो है वो है 5+3+3+4। ओके, यहाँ पे मैंने इंफॉर्मेशन आपके लिए दी है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये याद रखना, NEP 2020 इसको शॉर्ट में बोलते हैं। On 29th July 2020, Union Cabinet approved NEP 2020. Most important point, 29th July 2020. Okay, किसने किया? यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 which will replace the existing 10+2 school system
है ना। 10+2 ये जो अपना पुराना एजुकेशन पॉलिसी सिस्टम है उसे रिप्लेस करके नया पैटर्न लाया गया था, वो था 5+3+3+4 स्कूल सिस्टम। Okay. Beside this, the age group for the right to education RTE is now 3 to 18 years, जो पहले था 14 years का था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जगन्ना विद्या देवना या फिर दीवना, ये जो योजना है इसे इंप्लीमेंट किसने किया था, या फिर किस स्टेट ने इसे इंप्लीमेंट किया था या फिर लॉन्च किया था, इसे भी बोल सकते हैं। तो ये जो स्कीम है ये आंध्र प्रदेश ने लॉन्च की थी, केरला ने, तमिलनाडु ने या फिर महाराष्ट्र ने। तो आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। दिस स्कीम एम्स टू इंप्रूव द ग्रॉस इनरोलमेंट रेट, GER जिसे हम कहते हैं। ये क्वालिटी प्रोवाइड करता है हायर एजुकेशन में, इंश्योर करता है कंटिन्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स इन स्ट्रीम ऑफ हायर एजुकेशन एंड इक्विप द स्टूडेंट्स विद एसेंशियल स्किल्स। ओके, जो कि स्टार्ट किया था आंध्र प्रदेश ने। तो ये जो जगन्ना विद्या दीवाना है इसके रिगार्डिंग जो है स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड किए जाते हैं इस स्कीम में, ठीक है, किसे, स्टूडेंट्स के लिए, फॉर देयर स्किल डेवलपमेंट हो या फिर क्वालिटी एजुकेशन, हायर एजुकेशन हो या फिर ग्रॉस एनरोलमेंट रेट को इंप्रूव करने के लिए हो। ओके, तो ये था ऑल अबाउट द जगन्ना विद्या देवना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन सिटी वाज adjudged द सेकेंड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी आउट ऑफ 50 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड, है ना। वर्ल्ड में जो 50 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज है उसमें से एक इंडियन सिटी है जो सेकेंड रैंक पे आती है। तो वो कौन सी सिटी है, गाजियाबाद, कानपुर, गुरुग्राम, दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है गाजियाबाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट 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 हैज लॉन्च्ड द फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम टू एक्सेस क्लासेस 10 12 डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अगर 10वीं और 12वीं की क्लासेस के कुछ डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस चाहिए तो उसके लिए फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लॉन्च की गई थी बाय हु, बाय एनसीईआरटी, सीबीएसई, आईसीएसई, एनआईओएस। तो ये जो नई इनिशिएटिव है वो सीबीएसई ने लॉन्च की था, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई इसने इंट्रोड्यूस किया था ये फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम टू मेक स्टूडेंट्स अनेबल टू डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स ऑफ क्लास 10 एंड 12। अगर 12th या फिर 10th क्लास के कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको डाउनलोड करने हैं, उसका एक्सेस आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको फेशियल रिकॉग्निशन जरूरी होगा। ये जो इनिशिएटिव है ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने लॉन्च किया था या फिर इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। Using the latest facial recognition system, CBSE will enable students to download their digital academic documents of class 10 and 12, ठीक है। मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट्स होगा 10वीं या 12वीं क्लासेस का, उसको अगर डाउनलोड करना है आपको तो फेशियल रिकॉग्निशन जरूरी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस डील विथ कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑन एजुकेशनल प्लानिंग, ठीक है। एजुकेशन प्लानिंग में कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम करके एक प्रोग्राम है ना। उसमें क्या होता है कि स्किल्स डेवलप किए जाते हैं, अलग अलग तरह के ट्रेनिंग्स लिए जाते हैं जिससे स्किल डेवलपमेंट हो, है ना। ये जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, एनसीईआरटी, यूजीसी, नैक या फिर न्यूपा, NUEPA। सो द राइट आंसर इज न्यूपा। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसका लॉन्ग फॉर्म है न्यूपा का। अर्लियर नोन एज NIEPA, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एसोसिएटेड विद द यूनेस्को के साथ इसका एसोसिएशन है। रीजनल सेंटर फॉर एजुकेशनल प्लानर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि 1961 में स्टार्ट हुआ था, है ना। न्यूपा जो है ये एक एटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन, एक स्वतंत्र ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्लान करता है, मैनेज करता है कैपेसिटी बिल्डिंग इन एजुकेशनल पॉलिसी थ्रू रिसर्च, ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी एंड डिसेमिनेशन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटी बिल्डिंग कौन करता है, न्यूपा। कैपेसिटी बिल्डिंग क्या होती है, कैपेसिटी बिल्डिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें डेवलपमेंट होता है, स्ट्रेंथन होता है स्किल्स, इंस्टिंक्ट्स, एबिलिटीज, प्रोसेस एंड रिसोर्सेस, ठीक है, दैट ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिटीज नीड्स टू सर्वाइव, अडेप्ट एंड थ्राइव इन द फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड, ठीक है। समझ में आ गया कैपेसिटी बिल्डिंग क्या होती है। तो कौन करता है इसे, ऑर्गेनाइज कौन करता है, न्यूपा।
डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट एज अ हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव कमिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसी मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। ये सारी चीजों को इम्प्लीमेंट या फिर इसकी पॉलिसी मेकिंग कौन करता है? एग्जीक्यूटिव कमिटी, हाँ, या फिर डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड इज फाउंड इन। इंडिया का एक बर्ड है, जाना माना बर्ड है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नाम है उसका, ठीक है। ये कहाँ पे पाया जाता है? थार डेजर्ट ऑफ इंडिया, कोस्टल रीजन्स ऑफ इंडिया, टेम्परेट फॉरेस्ट इन हिमालय, या फिर तराई जोन्स ऑफ हिमालयन फुट, ठीक है। तो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड जो है वो पाया जाता है थार डेजर्ट ऑफ इंडिया में, ठीक है। इंडिया का जो डेजर्ट है, बड़ा डेजर्ट है, थार नाम है उसका, वहां पे पाया जाता है, राजस्थान में ये पाया जाता है। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड inhabits ड्राई ग्रासलैंड एंड स्क्रबलैंड ऑन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ठीक है। Its largest population are found in Indian state of Rajasthan, Great Indian Bustard, जिसका साइंटिफिक नेम है Aidiotis nigriceps, ठीक है। 1994 Great Indian Bustards were listed as an endangered species on the International Union for Conservation of Nature's Red List of Threatened Species, ठीक है। तो 1994 में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है उसे इंडेंजर्ड स्पेसीज के नाम से रिकॉग्नाइज किया गया था बाय द IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर्स, ठीक है। उसके बाद 2011 में उसका पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गया था, सो सीवियरली डिक्लाइन हो गया था। उसके बाद IUCN ने उसे क्लासिफाइड किया था द स्पेसीज आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है। मतलब 1994 में ये इंडेंजर्ड डिक्लेयर किया था और 2011 में उसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड डिक्लेयर किया था, ठीक है। इट इज ऑल अबाउट द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज साइंड अ 3-year वर्क प्रोग्राम विथ विच कंट्री फॉर कोऑपरेशन इन एग्रीकल्चर। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर को अपडेट करने के लिए या फिर एग्रीकल्चरल सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए इंडिया ने एक प्रोग्राम जो है वो साइन किया था एक कंट्री के साथ, जो कि 3 साल का वर्क प्रोग्राम है, ठीक है। तो वो कंट्री कौन सी थी? यूएई, इजराइल, फ्रांस या फिर यूएसए। तो वो जो कंट्री थी वो थी इजराइल, ठीक है। मतलब इजराइल कंट्री के साथ इंडिया ने 3 साल का वर्क प्रोग्राम जो है वो साइन किया है, जो कि क्या बोलते हैं इसे, कनेक्टेड है अपने एग्रीकल्चर ऑपरेशन से, ठीक है। इंडिया एंड इजराइल हैव साइंड अ 3-year वर्क प्रोग्राम एग्रीमेंट फॉर डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर कोऑपरेशन, ओके। India and Israel are already implementing the Indo-Israel Agricultural Project Center of Excellence and Indo-Israel Village of Excellence, ठीक है। मतलब इंडिया और इजराइल दो एक इनिशिएटिव्स पे काम कर रहा है जिसका नाम है इंडो इजराइल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस एंड इंडो इजराइल विलेज ऑफ एक्सेलेंस, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। द सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन कोलार, जो कि कर्नाटक में है, बालाकोट एंड धरवाड़, ठीक है, ये तीनों भी कर्नाटक में पाए जाते हैं। विल इम्प्लीमेंट एडवांस्ड इजरायली एग्रो टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेलर टू लोकल कंडीशंस। कोलार विल वर्क ऑन मैंगो, बालाकोट बगलकोट ऑन पोमोग्रेनेट एंड धरवाड़ सेंटर ऑन वेजिटेबल्स, ठीक है। हर एक प्लेस को अलग अलग इनिशिएटिव दिया है, अलग अलग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है। कोलार को दिया है मैंगो का, बगलकोट को दिया है पोमोग्रेनेट का और धरवाड़ सेंटर को दिया है वेजिटेबल्स का। ये लोग क्या करेंगे, ये इजरायली एग्रो टेक्नोलॉजी को यूज करके अपनी एग्रीकल्चर कोऑपरेशन जो है, अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसे डेवलप करने वाले हैं, ठीक है। तो किस कंट्री के साथ कोलैबोरेशन हुआ है? इंडिया एंड इजराइल, ठीक है। कितने साल का प्रोग्राम है? 3 साल का प्रोग्राम है। किससे रिलेटेड है? एग्रीकल्चरल से रिलेटेड है, ठीक है। ये 3 चीजें याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लीन इंडिया प्रोग्राम हैज बीन इनॉग्रेटेड फ्रॉम विच स्टेट। क्लीन इंडिया प्रोग्राम करके एक लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो कौन से स्टेट में किया गया था, ठीक है। कौन से स्टेट में इसे इनॉग्रेट किया गया था? बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर वेस्ट बंगाल। तो इसे इनॉग्रेट किया गया था उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश स्टेट में इसे इनॉग्रेट किया। सो द क्लीन इंडिया प्रोग्राम ये जो है, इसे यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनुराग ठाकुर जी ने लॉन्च किया था, ठीक है। कहां पे किया था? मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में,
ठीक है। द प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड एज अ पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, तो ये जो क्लीन इंडिया प्रोग्राम है इसे लॉन्च किया था एज अ पार्ट ऑफ व्हाट, आजादी का अमृत महोत्सव। ओके, ये जो स्कीम है या फिर एक क्लीन इंडिया प्रोग्राम जो है, इसका एम जो है वो है क्लीनलीनेस ड्राइव इज टू क्रिएट अवेयरनेस, इंकरेज पीपल एंड मेक देम इन्वॉल्व इन क्लीनिंग वेस्ट। ठीक है, वेस्ट जो होता है, कचरा जो होता है, इसे क्लीन करने के लिए इसका अवेयरनेस बढ़ाना, इसे क्लीन करने के लिए पीपल को इनकरेज करना इसका एम है। ठीक है, स्पेशली द सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है, दिस कैंपेन विल कंटिन्यू टिल 31 अक्टूबर, मतलब 31 अक्टूबर तक ये कैंपेन जो है वो कंटिन्यू चलने वाला है। कौन सा कैंपेन चलने वाला है? क्लीन इंडिया प्रोग्राम। वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? इसका आंसर जानने से पहले जान लेते कि व्हाट इज वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट। तो ये जो रिपोर्ट है ग्लोबली इसे पब्लिश किया जाता है। तो इसमें क्या मेंशन किया जाता है? फॉर एग्जांपल कुछ ग्लोबल ट्रेंड्स है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, अर्बनाइजेशन, इनइक्वालिटी, है ना, इस तरह के अलग अलग जो फैक्टर्स है उसे स्टडी किया जाता है और उसका रिपोर्ट बनाया जाता है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट कौन मेंशन करता है, सॉरी कौन रिलीज करता है? तो ये रिलीज करता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO। ओके, World Social Protection Report 2020-2022 was released by International Labour Organization on September 1st 2021। ठीक है, मतलब लास्ट मंथ में ही इस रिपोर्ट को पब्लिश किया था। Only 47% of global population had effective access to one social protection benefit। Okay, in 2020, while 53%, मतलब 4.1 billion people had no protection at all। तो जैसे कि मैंने बोला कि वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट जो है उसमें क्या क्या फोकस किया जाता है ना, इनइक्वालिटीज है, अर्बनाइजेशन है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है, या फिर अलग अलग ग्लोबल ट्रेंड्स जो भी है ना, उसमें पॉपुलेशन की प्रोटेक्शन का भी एक पॉइंट होता है जिसमें कि फोकस किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट फैक्टर 47% ग्लोबल पॉपुलेशन को इफेक्टिव एक्सेस मिला है to one social protection benefit, only one social protection benefit। okay, and 53% जो है मतलब 4.1 billion people had no protection at all। ठीक है, people in Europe and Central Asia are among the best covered population। 84% of population in Europe and Central Asia are having access to at least one benefit। ठीक है, मतलब ये जो रिपोर्ट है इसमें अलग अलग तरह के बेनिफिट्स को फोकस किया जाता है या फिर बेनिफिट्स को मेजर किया जाता है। ठीक है, और उसी ऑन बिहाफ ऑफ दैट थिंग ये रिपोर्ट जो है वो पब्लिश किया जाता है। ठीक है, तो वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट सितंबर 1st 2021 को रिलीज किया था दिस ईयर। कौन रिलीज करता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु चेयर्स द नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल मीटिंग? नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिल मीटिंग होती है उसकी बैठक कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, नीति आयोग CEO या फिर होम मिनिस्टर? सो नीति आयोग की जो मीटिंग होती है गवर्निंग काउंसिल मीटिंग, वो बैठक उसकी कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, सो प्रधानमंत्री के द्वारा ये चेयर किया जाता है नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल मीटिंग। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज टू चेयर 6th मीटिंग ऑफ नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल। ठीक है, 6th प्रॉब्लम रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट विल बी डिस्कस्ड इन द मीटिंग। ठीक है, ये जो 6th मीटिंग है नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल मीटिंग, उसमें एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स जो है उसे डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, द काउंसिल इज द एपेक्स बॉडी ऑफ नीति आयोग which includes all chief ministers, lieutenant governors, union territories, यूनियन मिनिस्टर्स एंड सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ठीक है, तो ये काउंसिल में कौन कौन इंक्लूडेड रहता है, कौन कौन पार्टिसिपेटरी रहता है? ऑल चीफ मिनिस्टर्स रहते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स रहते हैं यूनियन टेरिटरीज के, यूनियन मिनिस्टर्स रहते हैं और सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान सूर्योदय योजना दैट वाज सीन इन न्यूज रिसेंटली इज इंप्लीमेंटेड बाय व्हिच स्टेट? ठीक है, किसान सूर्योदय योजना करके एक योजना लॉन्च किया गया था, वो किस स्टेट ने लॉन्च किया था? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार या फिर गुजरात?
सो गुजरात स्टेट ने इसे लॉन्च किया था। सो देखते हैं क्या है ये योजना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनके द्वारा ये इनॉग्रेट किया गया था किसान सूर्योदय योजना गुजरात में। ठीक है, ये एक एग्रीकल्चरल स्कीम है जिसमें कि फार्मर्स को पावर सप्लाई प्रोवाइड किया जाएगा सुबह 5 से रात को 9 बजे तक। किसके लिए? इरिगेशन पर्पस के लिए। ओके, ये स्कीम जो है गुजरात के चीफ मिनिस्टर जो है विजय रूपानी इनके द्वारा अनाउंस किया गया था। इसे इसमें 3500 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है जो कि यूज किया जाएगा इंस्टॉलिंग पावर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर बाय 2023 2023 तक। हाँ, पावर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉल करने के लिए 3500 करोड़ का एलोकेशन जो है, बजट जो है वो दिया गया है। ठीक है, किसान सूर्योदय योजना इसके अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2021? कब होता है योगा डे? 21 जून को होता है ना। 21 जून को जो योगा डे हुआ था, इंटरनेशनल योगा डे, उसका थीम क्या था? योगा एंड साइंस, योगा अमिड कोविड, योगा फॉर वेलनेस या फिर योगा फॉर वर्ल्ड? सो 2021 का जो योगा डे था उसका थीम जो था वो था योगा फॉर वेलनेस। International Day Yoga Day has been celebrated every year on 21st June since 2015. ठीक है, 2015 से ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। PM Modi proposed to observe an International Yoga Day in his address during the opening of 69th session of United Nations General Assembly. Okay, this year the theme of International Day is Yoga for Wellness. मतलब 21 जून को जो इंटरनेशनल योगा डे जो सेलिब्रेट किया था उसका थीम था योगा फॉर वेलनेस। द फोकस विल बी ऑन प्रैक्टिसिंग योगा फॉर फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। ठीक है, मेंटली और फिजिकली फिट रहने के लिए हमें योगा करने की बहुत ज्यादा जरूरत है ना। और इस साल का थीम भी यही था कि योगा फॉर वेलनेस, वेलनेस ऑफ व्हाट? मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल टेक्नोलॉजी डे थीम 2021। ठीक है, 2021 का जो नेशनल टेक्नोलॉजी डे था उसका थीम क्या था? साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, रिस्टार्ट द रिसाइकल, आत्मनिर्भर विज्ञान या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर आत्मनिर्भर इंडिया, है ना। तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2021 जो था उसका थीम था साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन May 11 एवरी ईयर। 11 मई को हर साल इसे मनाया जाता है। कमेमोरेट द टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट मेड बाय कंट्री। द थीम इज दिस ईयर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। ओके, so this day was first observed on May 11, 1999. ठीक है, 11 मई 1999 में इसे सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था एज अ नेशनल टेक्नोलॉजी डे। ओके, as on the same date in 1998, India successfully conducted 3 nuclear tests at Indian Army's Pokhran test range in Rajasthan. ठीक है, तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे को क्यों मनाया जाता है? तो इसी डेट पे इंडियन आर्मी ने अपने 3 न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो सक्सेसफुली कंडक्ट किए थे इन पोखरान टेस्ट रेंज इन राजस्थान। ठीक है, जो कि राजस्थान में है। ऑन 11th May 1998, इंडिया आल्सो टेस्टेड इट्स फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट हंसा 3 एंड सरफेस टू एयर मिसाइल त्रिशूल। ठीक है, इसी डे पे इंडिया ने और एक एयरक्राफ्ट जो है इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट है हंसा 3 नाम से, उसे टेस्ट किया था। और उसी के साथ एक एयर मिसाइल भी टेस्ट की थी जो कि सरफेस एयर मिसाइल है जिसका नाम था त्रिशूल। ठीक है, तो इसी वजह से नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है वो 11 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस ऑब्जर्व्ड ऑन। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस ये कौन से डे पे ऑब्जर्व किया जाता है? अप्रैल 11, अप्रैल 9, अप्रैल 6 या फिर अप्रैल 20? सो अप्रैल 6 इज द करेक्ट आंसर। मतलब 6 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस ये जो है ऑब्जर्व किया जाता है। International Day of Sports for Development and Peace is observed across world on 6 April after United Nations General Assembly Resolution 2013. ये जो इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स एंड डेवलपमेंट पीस है ये हर बार सेलिब्रेट किया जाता है टू पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट
एंड एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, इस साल का जो थीम था इसका ये था कि अराउंड रिकवरी फ्रॉम द पैंडेमिक एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विटी इन दैट रिकवरी। ठीक है, हर जगह पे पैंडेमिक की वजह से जो भी लॉसेस हुए थे उसकी रिकवरी करना, है ना, और इक्विटी और रिकवरी की जो इम्पोर्टेंस है उसकी अवेयरनेस बढ़ाना, ये जो थीम था ये था इंटरनेशनल डे स्पोर्ट्स डेवलपमेंट एंड पीस का, मतलब इस साल का ये थीम था। ठीक है, तो ये कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को। Moving to the next question, which state government launched a digital platform called Knowledge Mission to promote employment and skilling? ठीक है, एम्प्लॉयमेंट और स्किल्स को प्रमोट करने के लिए एक स्टेट गवर्नमेंट ने नॉलेज मिशन करके एक ऑनलाइन या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। वो किस स्टेट ने या फिर किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु या फिर तेलंगाना? तो इसका राइट आंसर क्या है? केरला स्टेट। ठीक है, केरला स्टेट गवर्नमेंट जो है उसने डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था नॉलेज मिशन नाम से, जिसका ऑब्जेक्टिव था टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। ओके, केरला स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था नॉलेज केरला नॉलेज मिशन, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल ट्रेनिंग। ठीक है, इसका जो इस ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है इसका इनिशिएटिव किसने लिया था? केरला डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजीज काउंसिल, के डिस्क। ठीक है, इसने इंप्लीमेंट करने का ये इनिशिएटिव लिया था। जॉब एस्पिरेंट्स एंड एजुकेटेड एम्प्लॉयड यूथ would be facilitated to upskill and enhance knowledge apart from gaining employment. Okay, the digital platform was developed in collaboration with the Kerala University of Digital Science, Innovation and Technology. ठीक है, IITMK। सो बेसिकली ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये केरला स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था एज अ केरला नॉलेज मिशन। इसे इम्प्लीमेंट किया था केरला डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक काउंसिल ने, जिसे केडिस कहा जाता है ना। और ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है इसे डेवलप या फिर कोलैबोरेट किया था केरला यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेस, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल आयुर्वेदा डे 2021? 2021 का जो नेशनल आयुर्वेदा डे है उसका थीम क्या है? तो 2 नवंबर को हर साल नेशनल आयुर्वेदा डे मनाया जाता है। ठीक है, तो इस साल का जो नेशनल आयुर्वेदा डे है उसका थीम क्या था? आयुर्वेदा फॉर पोषण, आयुर्वेदा फॉर कोविड, आत्मनिर्भर आयुर्वेदा या फिर अमृत आयुर्वेदा? सो इस साल का जो थीम था वो था आयुर्वेदा फॉर पोषण। ठीक है, मतलब पोषण के लिए आयुर्वेदा। 2021 का जो आयुर्वेदा डे था, ठीक है, उसका जो थीम था वो था आयुर्वेदा फॉर पोषण। जैसे कि हमने क्वेश्चन में देखा 2016 से इसे हर साल मनाया जाता है 2 नवंबर को। ये जो नेशनल आयुर्वेदा डे है, ठीक है, इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन द ओकेजन ऑफ धन्वंतरी जयंती। धन्वंतरी जयंती को इसे मनाया जाता है जो कि एक बर्थ एनिवर्सरी है ऑफ द लॉर्ड धन्वंतरी विच अकर्स ऑन धनतेरस। ओके, दिस ईयर नेशनल आयुर्वेदा Day 2021 is being celebrated to promote the Ayurveda principles of wellness and healing. Which institution released the state nutrition profile? Okay, state nutrition profile जो है वो किस इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया है? यूनेस्को, नीति आयोग, यूएनडीपी या फिर एमएचआरडी? तो इसका राइट आंसर जो है वो है नीति आयोग। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि स्टेट न्यूट्रिशन प्रोफाइल क्या है। तो ये जो स्टेट न्यूट्रिशन प्रोफाइल है ये बेसिकली नीति आयोग ने लॉन्च किया है, बट इसके साथ और भी इंस्टीट्यूशंस इसमें शामिल है। फॉर एग्जांपल IFPRI है, उसके बाद IIPS है, यूनिसेफ है ना, उसके बाद IEG है। ये सारे ने मिलके इसे लॉन्च किया है for the 19 states and union territories on 30th September 2021. ठीक है, it analyzes key indicators such as wasting, stunting, anemia, underweight and overweight and NCDs, ठीक है, डायबिटीज एंड हाई ब्लड प्रेशर। तो ये सारी चीजें इसमें मेजर की जाएगी। ठीक है, ये सारी चीजों पे फोकस किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसे लॉन्च कब किया था और किसने लॉन्च किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which initiative has been launched by the government of India for preschooling kids? NDAR, सफल, विद्या प्रवेश, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट सिस्टम। सो NDAR जो है वो है नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर, जिसे प्राइम मिनिस्टर जी ने फरवरी 2021 में लॉन्च किया था, अनाउंस किया था।
टू बूस्ट द डिजिटल आर्किटेक्चर फॉर एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है। दूसरा है सफल। सफल का मतलब है स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग, है ना। ये कॉम्पिटिटिव बेस्ड असेसमेंट है फॉर द ग्रेड्स 3, 5 एंड 8, जिसे सीबीएसई ने अनाउंस किया था, इंट्रोड्यूस किया था। दूसरा है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट सिस्टम। ये एक ऑनलाइन वर्चुअल स्पेस है जो कि प्रोवाइड किया जाता है स्टूडेंट्स को टू डिपॉजिट एंड एक्यूमुलेट द क्रेडिट्स दे अर्न ड्यूरिंग देयर कोर्स ऑफर्ड इन इंडियन यूनिवर्सिटीज। ठीक है। और विद्या प्रवेश इसका राइट आंसर है, जो प्री स्कूल के लिए, प्री स्कूल किड्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर जी ने इसे लॉन्च किया था इन 2020 जुलाई 29 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। Vidya Pravesh initiative has been launched for preschool kids, basically for grade 1. Okay. Under this initiative, 3 months play module will be set up for the children to prepare them for school. It will also include the subject of Indian Sign Language at the secondary level. ठीक है। सो ये था अपना विद्या प्रवेश। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंड फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, फिस्ट जिसे शॉर्ट में कहा जाता है, इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर क्या होता है? एक ऐसा डिपार्टमेंट जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है एग्जीक्यूटिंग द लॉज, जो कि फार्मिंग, फॉरेस्ट्री, रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फिर फूड, ये सारे चीजों में जो लॉज होता है उसे एग्जीक्यूट करने के लिए या फिर डेवलप करने के लिए ये डिपार्टमेंट बनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल है, ये एक पब्लिक ग्रीवांस डिपार्टमेंट है। स्पेशली ये कहाँ कंसर्न होता है? रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, करियर डेवलपमेंट, स्टाफ वेलफेयर वगैरह, इस चीजों में ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। उसके बाद है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। ये गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है जो कि स्पेस प्रोग्राम्स जो होते हैं उसकी एडमिनिस्ट्रेशंस में ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। और रहा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये जो डिपार्टमेंट है ये 1971 में स्टैब्लिश किया गया था, जो कि टेक्नोलॉजीज, साइंस या फिर टेक्नोलॉजीज है ना, कुछ नए नए टेक्नोलॉजीज या फिर डिपार्टमेंट्स है ऑर्गेनाइज करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए, है ना, रिगार्डिंग टेक्नोलॉजीज एक्टिविटीज। ठीक है। ये सारी चीजों को प्रमोट करने के लिए ये डिपार्टमेंट बनाया गया था। और इसी के अंडर ये जो फिस्ट है, फंड फॉर इंप्रूवमेंट एंड साइंस टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इंप्लीमेंट किया गया था। ठीक है। सो द राइट आंसर इज बी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके। सो फिस्ट ये जो स्कीम है इसे क्यों बनाया गया था? टू प्रोवाइड द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या फिर यूनिवर्सिटीज, टू प्रमोट द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। ठीक है। ये जो फिस्ट प्रोग्राम है ये री-लॉन्च किया जाएगा एज अ फिस्ट 2.0, aims align the requirements of startups with the government's self-reliant India campaign। ठीक है। फिस्ट प्रोग्राम जो है ये 2000, ठीक है, ईयर 2000 में इस्टेब्लिश किया गया था। स्प्रेड ओवर 3000 डिपार्टमेंट्स एंड पीजी कॉलेजेस अक्रॉस द नेशंस, मतलब 3000 से ज्यादा डिपार्टमेंट्स में या फिर पीजी कॉलेजेस में इंडिया में ये काम कर रहा है। ठीक है। फिस्ट प्रोग्राम। ओके। इट इज ऑल अबाउट द फिस्ट। क्या है ये फिस्ट? फंड फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म येलो जर्नलिज्म रेफर्स टू। येलो जर्नलिज्म करके एक टर्म होता है न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग। तो ये जो टर्म है इसका मतलब क्या है? सेंसेशनल न्यूज अबाउट टेररिज्म एंड वायलेंस, मतलब आतंकवाद या फिर हिंसा के बारे में एक खबर जो होती है वो होता है येलो जर्नलिज्म। या फिर सेंसेशनलिज्म एंड एक्सागरेशन टू अट्रैक्ट रीडर्स एंड व्यूअर्स, मतलब जो रीडर्स या फिर व्यूअर्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए कुछ एक्साग्रेशन या फिर सेंसेशनल, अतिशयोक्ति या फिर सनसनी जो न्यूज होती है उसका मतलब होता है येलो जर्नलिज्म। या फिर सेंसेशनल न्यूज अबाउट आर्ट्स एंड कल्चर्स, है ना, या फिर कुछ आर्ट्स एंड कल्चर से वाले में जो न्यूज होती है उसका मतलब येलो जर्नलिज्म होता है। या फिर सेंसेशनल न्यूज प्रिंट इन येलो पेपर, या फिर पीले पेपर में कुछ न्यूज दी जाती है उसका मतलब येलो जर्नलिज्म होता है। तो येलो जर्नलिज्म ये क्या होता है? ये होता है सेंसेशनल एंड एक्साग्रेशन टू अट्रैक्ट रीडर्स एंड
व्यूअर्स। ओके, येलो जर्नलिज्म या फिर येलो प्रेस, ये जो टर्म है ये एक अमेरिकन टर्म है फॉर जर्नलिज्म एंड रिलेटेड न्यूज़पेपर्स दैट present little or no legitimate well researched news using eye catching headlines to increase sales। मतलब इन शॉर्ट ये जो येलो जर्नलिज्म है या फिर येलो प्रेस है ये प्रमोटिंग टर्म है, एक प्रमोट करने के लिए है। मतलब इसका यूज किसके लिए किया जाता है? सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, है ना। इसे किस तरह से यूज किया जाता है? कुछ आई कैचिंग हेडलाइंस लिखे जाते हैं पेपर्स में, या कुछ स्कैम की तरह, स्कैम न्यूज जो होते हैं, सेंसेशनल न्यूज जो होते हैं, उसे उसकी हेडिंग दी जाती है, जिससे ज्यादा से ज्यादा रीडर्स या फिर व्यूअर्स जो है वो अट्रैक्ट होने लगते हैं, और अट्रैक्ट होने की वजह से सेल्स जो है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, इसलिए ये येलो जर्नलिज्म जो है ये यूज किया जाता है। ठीक है, येलो प्रेस या फिर येलो जर्नलिज्म, इसे दोनों नाम से जाना जाता है। इसमें क्या इंक्लूड रहता है? कुछ टेक्निक्स यूज होते हैं, एक्साग्रेशन, स्कैमिंग, सेंसेशनल न्यूज इवेंट्स, इसका यूज किया जाता है ये टेक्निक में। और उसे कब लाया गया था? मिड 1890s में लाया गया था। जो दो न्यूज़पेपर थे, न्यूयॉर्क वर्ल्ड और न्यूयॉर्क जर्नल जर्नल, ये दो न्यूज़पेपर के बीच में जो जो भी वॉर चल रहा था, उसके बीच में ये येलो जर्नलिज्म जो टर्म है ये लाया गया था। ठीक है, The government has elected which company to connect 5,000 village panchayat with satellite broadband under भारत नेट प्रोजेक्ट। ठीक है, एक इंडिया का इनिशिएटिव था, भारत नेट प्रोजेक्ट नाम था उसका। उसमें गवर्नमेंट ने क्या किया था? 5,000 विलेज पंचायत जो है उसे कनेक्ट किया था एक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड से। ठीक है, एक कंपनी के द्वारा। तो वो कंपनी का नाम यहाँ पे पूछा है, ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया, एयरटेल डिजिटल, टाटा स्काई या फिर जिंक डिजिटल। तो वो कौन सा ऐसा या फिर कौन सी ऐसी कंपनी थी जिसके अंडर 5,000 विलेज पंचायत जो है उसे कनेक्ट किया था एक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड से? तो वो कंपनी थी ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया। The government has selected Hughes Communication India to connect 5,000 village panchayats with satellite broadband under BharatNet project by March 2021। तो इसमें कितने पॉइंट्स हैं हमें जो याद रखना है? मार्च 2021 ये डेट याद रखनी है, प्रोजेक्ट का नाम याद रखना है भारत नेट प्रोजेक्ट, कंपनी का नाम याद रखना है ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया, HCI शॉर्ट में आप रख सकते हैं, और कितने विलेजेस पंचायत थे? 5,000 विलेज पंचायत। ठीक है, 5,000 village panchayat are to be selected from the border and Naxal affected states as well as island territories। तो 5,000 ग्राम पंचायत स्पेसिफिकली कहां से सिलेक्ट किए हैं? नक्सल अफेक्टेड स्टेट्स है, उसमें बॉर्डर्स भी है और आइलैंड टेरिटरीज भी है। ठीक है, इसमें इंक्लूजन किसका किसका है? गालवन वैली का है जो कि ईस्टर्न लद्दाख में है। हाँ, उसके बाद अंडमान निकोबार आइलैंड पे भी है एंड लक्षद्वीप पे भी इसे यूज किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एसोसिएटेड with abolition or creation of legislative council in states। ठीक है, आर्टिकल 69, आर्टिकल 123, आर्टिकल 169 एंड आर्टिकल 196। तो पहले हम राइट आंसर देख लेते हैं। आर्टिकल 169 डील्स विद द एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स। ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं अपन। आर्टिकल 69, आर्टिकल 123, 169, 196। ठीक है, Article 169 deals with the association with abolition or creation of legislative council in states। ठीक है, ये तो हमने आंसर में देख लिया था। उसके बाद है आर्टिकल 69, ये एसोसिएशन है, इसका एसोसिएशन जो है वो है ओथ और अफर्मेशन बाय द वाइस प्रेसिडेंट के साथ। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट की जो शपथ होती है, ओथ जो होती है, उससे रिलेटेड है आर्टिकल 69 ओनली। आर्टिकल 123 किससे एसोसिएटेड है? पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट को एक ऐसी पावर दी जाती है जो पार्लियामेंट में अगर कुछ रिसेशन हो, है ना, तो उसमें राइट टू टेक डिसीजन, ये प्रेसिडेंट को पावर दिया जाता है। ठीक है, अंडर आर्टिकल 123। आर्टिकल 196 इट डील्स विद द प्रोविजंस एज टू इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स। ठीक है, आर्टिकल 196 के अंडर बिल्स जो होते हैं उसे पास करना या फिर उसे इंट्रोड्यूस करना, ये प्रोविजंस लिखे होते हैं किसमें? आर्टिकल 196 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन रिलीजेस द रिपोर्ट
टाइटल्ड बेस्ट प्रैक्टिस इन द परफॉर्मेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। ठीक है, ये एक टाइटल है जिसे बेस्ट प्रैक्टिस इन द परफॉर्मेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कहा जाता है। ये जो टाइटल है किस इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया था, ठीक है, या फिर किस इंस्टीट्यूट के रिपोर्ट में इसे रिलीज किया गया था? AIIMS जिसे एम्स कहा जाता है, नीति आयोग, IMA या फिर वर्ल्ड बैंक। तो ये जो टाइटल था उसे नीति आयोग ने रिलीज किया था। नीति आयोग रिसेंटली रिलीजेस अ परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स इन इंडिया टाइटल्ड बेस्ट प्रैक्टिस इन परफॉर्मेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। ठीक है, तो ये नीति आयोग ने रिलीज किया था। डिस्ट्रिक्ट में जो हॉस्पिटल्स है, जिस हॉस्पिटल ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, बेस्ट परफॉर्मेंस किया है, उसे ये टाइटल दिया जाता है। ठीक है, द रिपोर्ट इज मेड विद द कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड WHO। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये दोनों की कोलैबोरेशन से ये रिपोर्ट बनाया गया है। The assessment framework covers 10 key performance indicators and total of 707 district hospitals across all states and UTs participated in the assessment। ठीक है, मतलब 700 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट इसमें कवर किए जाते हैं, 700 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल्स इसमें कवर किए जाते हैं, और इसमें 10 की पॉइंट जो है परफॉर्मेंस के उसे इंडिकेट किया जाता है। द हेल्थ मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन सिस्टम HMIS, okay, data for the year 2017 and 18 was used as baseline. 75 district hospitals across 20 states and UTs emerged as top performers. Okay, next question is Karupur Kamlakari paintings and wood carving of Kallakurichi which have received the GI tags belongs to which state? GI tags में भी आपको पता होगा geographical indication जिसे कहा जाता है। तो करूपुर में कमलाकरी पेंटिंग्स को एंड वुड कार्विंग ऑफ कल्लाकुरिची को GI टैग दिया गया था। तो ये कौन से स्टेट से है? केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर हरियाणा? तो वो है तमिलनाडु स्टेट से। ओके, करूपुर कमलाकरी पेंटिंग्स एंड वुड कार्विंग ऑफ कल्लाकुरिची, कहां से है ये? कल्लाकुरिची। ओके, बोथ बिलोंगिंग टू द स्टेट तमिलनाडु। ये दोनों भी जिसे GI टैग मिला है वो तमिलनाडु से है। कल्लाकुरिची इस जगह से है। have received a geographical indication or GI tag from the government of India, है ना। GI tag is awarded to product of specific geographical origin and it adds significance to the products. It is regulated under geographical indications registration administered by Geographical Indication of Goods Registration and Protection Act 1999, है ना। बहुत बड़ा पैराग्राफ था। तो 1999 की जो जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट है, इसके अंडर ये GI टैग दिया जाता है। ये स्पेसिफिक जोग्राफिकल ओरिजिन जो होता है या फिर सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोडक्ट जो होता है उसे ये GI टैग दिया जाता है। जोग्राफिकल इंडिकेशन ये जो साइन है ये पर्टिकुलरली एक स्पेसिफिक ओरिजिन हो सकता है या फिर कुछ क्वालिटीज होती है कुछ प्रोडक्ट्स में, या फिर एक अलग तरह से बनाए गए प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसे GI टैग दिया जाता है। इंडिया में अभी तक 300 GI टैग्स है जिसमें कि सबसे ज्यादा है कर्नाटका स्टेट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्री स्कूलिंग किड्स? NDAR, सफल, विद्या प्रवेश, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट सिस्टम। सो NDAR जो है वो है नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर, जिसे प्राइम मिनिस्टर जी ने फरवरी 2021 में लॉन्च किया था, अनाउंस किया था, टू बूस्ट द डिजिटल आर्किटेक्चर फॉर एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, दूसरा है सफल। सफल का मतलब है स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग, है ना। ये कॉम्पिटिटिव बेस्ड असेसमेंट है फॉर द ग्रेड्स 3, 5 एंड 8 जिसे CBSE ने अनाउंस किया था, इंट्रोड्यूस किया था। दूसरा है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट सिस्टम। ये एक ऑनलाइन वर्चुअल स्पेस है जो कि प्रोवाइड किया जाता है स्टूडेंट्स को टू डिपॉजिट एंड एक्यूमुलेट द क्रेडिट्स दे अर्न ड्यूरिंग देयर कोर्स ऑफर्ड इन इंडियन यूनिवर्सिटीज। ठीक है, और विद्या प्रवेश इसका राइट आंसर है, जो प्री स्कूल किड्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जी ने इसे लॉन्च किया था इन 2020 जुलाई 29 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। विद्या प्रवेश इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड फॉर प्री स्कूल किड्स बेसिकली फॉर ग्रेड 1।
Okay. Under this initiative, 3 months play module will be set up for the children to prepare them for school. It will also include the subject of Indian Sign Language at the secondary level. ठीक है, सो ये था अपना विद्या प्रवेश. ओके. Which organization has launched Urja, an AI-enabled virtual assistance? है ना, कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ऊर्जा ये जो लॉन्च किया है, जो कि AI बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनेबल्ड वर्चुअल असिस्टेंस है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम, NTPC लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या फिर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड? सो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज द करेक्ट आंसर. सो ऊर्जा ये जो लॉन्च किया है वो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने लॉन्च किया है. ये एक वर्चुअल असिस्टेंट है विथ AI NPL कैपेबिलिटीज एंड ट्रेन्ड ऑन मोर देन 600 यूज केसेस. ओके, इसे इस तरह से ट्रेन किया है, इस तरह से बनाया गया है कि ये मोर देन 600 केसेस भी सॉल्व कर सकता है ना. ये जो एफर्ट है टू मेक BPCL's कस्टमर इंटरफेस कंप्लीट एंड डिजिटली इंटीग्रेटेड, Urja, the cabot is now available on the company's website for any question. Urja जो है ये 13 लैंग्वेजेस बोल सकता है, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, तमिल, कन्नड़ा, इस तरह से बहुत सारे लैंग्वेजेस है. 13 लैंग्वेजेस है टोटल, है ना. मतलब जो भी क्वायरीज रहते हैं कस्टमर्स के, है ना, उसे वर्चुअली असिस्ट करेगा ये ऊर्जा, है ना, जो कि BPCL के वेबसाइट पे अभी अवेलेबल है. Next question. Which country ranked first in the World Talent Ranking 2020? Okay. 2020 में जो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग हुआ था, देखा इस पे अलग अलग तरह के रैंकिंग्स होते हैं. टैलेंट रैंकिंग हो गया, हैप्पीनेस इंडेक्स होता है, उसके बाद हो गया ग्लोबल रिस्क होते हैं, है ना. अलग अलग तरह के इंडेक्सेस होते हैं, हमें सब चीजें पढ़नी जरूरी है. Which country ranked first in the World Talent Ranking 2020? इंडिया, USA, चाइना या फिर स्विट्जरलैंड? सो राइट आंसर इज स्विट्जरलैंड. स्विट्जरलैंड जो है 2020 के इंडेक्स के अकॉर्डिंग वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में फर्स्ट नंबर पे है. स्विट्जरलैंड के बाद आता है सेकेंड नंबर पे डेनमार्क, उसके बाद है लक्समबर्ग. और इंडिया का जो रैंकिंग है 2019 में उसका 59 रैंक था, लेकिन उसके बाद 2020 में उसका रैंकिंग 59 से 62 तक चला गया. ओके. So according to 2020 world talent ranking 62 नंबर आता है इंडिया का. नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the name of the national level summit organized by the National Mission for Clean Ganga and Sea Ganga? ठीक है, नेशनल मिशन फॉर सी गंगा एंड क्लीन गंगा, इसने एक समिट ऑर्गेनाइज किया था. उस समिट का नाम क्या था? इंडिया गंगा समिट, इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट, गंगा रिजुविनेशन समिट या फिर क्लीन गंगा समिट? तो इसका राइट आंसर है बी, इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट. ओके. फिफ्थ इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट, जिसे IWIS ऐसे शॉर्ट नाम से जाना जाता है, ये ऑर्गेनाइज किया था नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एंड सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज, जिसे शॉर्ट में सी गंगा कहा जाता है. ओके. तो सी गंगा का लॉन्ग फॉर्म अगर पूछा जाए तो सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज इसका लॉन्ग फॉर्म हो जाएगा. ठीक है. इसका थीम था कि कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस एंड होलिस्टिक मैनेजमेंट ऑफ लोकल रिवर्स एंड वाटर बॉडीज विद फोकस ऑन अर्थ गंगा रिवर कंजर्वेशन. ठीक है. इसका थीम क्या था? कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस एंड होलिस्टिक मैनेजमेंट ऑफ लोकल एंड वाटर बॉडीज ये था. और इसे ऑर्गेनाइज किसने किया था? नेशनल मिशन क्लीन गंगा एंड सी गंगा ने. ठीक है. तो इसमें क्या क्या चीजें याद रखनी है? ये समिट का नाम याद रखना है, ऑर्गेनाइज किसने किया था ये याद रखना है ना, और इसका थीम याद रखना है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स गिव्स राइट्स टू सिटीजंस टू फाइल केसेस अगेंस्ट वायलेशन ऑफ एनवायरमेंटल नॉर्म्स? ठीक है. सिटीजन को एक राइट होता है कि अगर कोई पर्सन ऐसे एक्टिविटीज करता है जो कि इन्वायरमेंट में हार्म करती है या फिर सेफ नहीं है ना, उसे वायलेशन ऑफ इन्वायरमेंट कहा जाता है. तो सिटीजन को एक राइट होता है कि वो फाइल केस करे अगेंस्ट दैट वायलेशन, है ना. तो अगर उसे फाइल केस करना हो तो वो किस एक्ट के अंडर फाइल कर सकता है? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, एयर पोल्यूशन एक्ट, वाटर पोल्यूशन एक्ट या फिर फॉरेस्ट एक्ट? ठीक है. तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट. व्हाई?
बिकॉज इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कंबाइनली हर एक पोल्यूशन या फिर हर एक वायलेशन जो कि इन्वायरमेंट में वायलेशन करता है उसके लिए ये प्रोटेक्शन एक्ट होता है, ठीक है। एयर पोल्यूशन एक्ट, वाटर पोल्यूशन एक्ट या फिर फॉरेस्ट पोल्यूशन एक्ट, ये एक स्पेसिफिक पोल्यूशन को कंट्रोल करता है या फिर प्रिवेंट करता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाइल द वाटर एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट एंड एयर एक्ट डील्स विद द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, ठीक है। स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है। द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट डील्स विद द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ऑल सॉर्ट ऑफ पोल्यूशन, ठीक है। मतलब बी एयर पोल्यूशन एक्ट हो, वाटर पोल्यूशन एक्ट हो, फॉरेस्ट एक्ट हो, ये स्पेसिफिक पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं या फिर प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो ऑल सॉर्ट ऑफ पोल्यूशन को कवर करता है, प्रिवेंट करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। इसलिए अंडर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ये क्या करता है, ये राइट देता है सिटीजन को टू फाइल केसेस अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ environmental norms. Okay. Reward project which was making news recently is to be implemented by which state? ठीक है, रिवार्ड करके प्रोजेक्ट एक है, इसे कौन से स्टेट ने लॉन्च किया था? उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला या फिर कर्नाटका? तो ये जो रिवार्ड प्रोजेक्ट है इसे लॉन्च किया था या फिर इंप्लीमेंट किया था उड़ीसा स्टेट ने, ठीक है। State Cabinet of Odisha approved the implementation of rejuvenating watersheds for agricultural resilience through innovative department, जिसे शॉर्ट में रिवार्ड प्रोजेक्ट कहा जाता है। RE for rejuvenation, watersheds for W, ठीक है, agricultural for A, resilience for R and D for innovative development, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? लैंड एंड वाटर कंजर्वेशन इसे इंप्रूव करने के लिए या फिर क्लाइमेट रिसिलियंस इन सिलेक्टेड वाटर शेड्स को इंप्रूव करने का इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। 2021 के बाद 6 ईयर तक 500 करोड़ प्रोजेक्ट का इनका एम है या फिर इंप्रूव करने का एम है इन द वाटर शेड्स थ्रू साइंस बेस्ड मैनेजमेंट, ठीक है। Which strategic nation building initiative is नीति आयोग set to launch to mentor students? ठीक है, स्टूडेंट्स को मार्गदर्शन करने के लिए नीति आयोग एक स्ट्रैटेजिक नेशन बिल्डिंग इनिशिएटिव लेने जा रही है और या फिर कुछ लॉन्च कर रही है या फिर लॉन्च किया गया है ना। तो वो क्या है? मेंटोर इंडियन कैंपेन है, स्टूडेंट्स इंडियन कैंपेन है, टीचर इंडिया कैंपेन है या फिर कोच इंडिया कैंपेन है। तो नीति आयोग जो है वो लॉन्च कर रही है मेंटोर इंडिया कैंपेन। मेंटोर इंडिया ये जो कैंपेन है ये अटल इनोवेशन मिशन के अंडर लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है? गाइड या फिर मेंटोर किया जाता है स्टूडेंट्स को या फिर स्टार्टअप अक्रॉस इंडिया, ठीक है। ये याद रखना, अटल इनोवेशन मिशन के अंडर इसे लॉन्च किया गया है। नीति आयोग सीईओ अमिताभ कंत ने इसे लॉन्च किया था मेंटोर इंडिया कैंपेन को न्यू दिल्ली अगस्त 23, 2017 में, ठीक है। ये जो एम है अटल इनोवेशन मिशन, जिसे एम कहा जाता है शॉर्ट में, ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, सेटअप किया था नीति आयोग ने प्रमोट करने के लिए इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री, ठीक है। मतलब कंट्री की जितनी लेंथ है या फिर ब्रेड्थ है, मतलब पूरे कंट्री में ये जो मिशन है अटल इनोवेशन मिशन, ये लॉन्च करने का एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। Mentor India is a strategic nation building initiative to engage leaders who can nurture and guide students at more than 900 अटल टिंकरिंग लैब्स, ठीक है। मतलब इंडिया में जितने भी अटल इनोवेशन मिशन के अंडर जो लैब्स बनाए गए हैं उसमें ये मेंटोर इंडिया कैंपेन जो है वो लॉन्च होने जा रहा है, ठीक है। Next question, the Union Cabinet has given its approval for signing a MOU with which country in the field of medical products regulation as well as ICT, ठीक है। तो ये क्वेश्चन और इससे पहले वाला ICT रिगार्डिंग है। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसी कौन सी कंट्री है जिसके साथ यूनियन कैबिनेट ने MOU साइन किया है इन द फील्ड ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट्स रेगुलेशन एंड ICT, ठीक है। रशिया, इजराइल, यूएई या फिर यूनाइटेड किंगडम? तो इसका राइट आंसर है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के साथ यूनियन कैबिनेट ने एक एमओयू साइन किया था इन द फील्ड ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेशन एंड आईसीटी, ठीक है। यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर हैज गिवन इट्स अप्रूवल फॉर साइनिंग एमओयू
between Central Drug Standard Control Organization CDSCO India and its counterpart in the United Kingdom on cooperation in the field of medical product regulation. Okay, the cabinet also approved to sign another MOU with the United Kingdom government on cooperation in the field of information and communication technology. Okay, तो यहाँ पे तीन चीजें याद रखनी है. CDSCO का नाम याद रखना है, इंडिया का है. मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेशंस इसका फील्ड है और उसी के साथ ICT भी इसका एक फील्ड है. किसके साथ MOU साइन किया था? यूनाइटेड किंगडम के साथ, यूनाइटेड किंगडम कंट्री के साथ. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, which PSU is set to build the first green hydrogen plant at मथुरा? ठीक है, कौन सी ऐसी पहली PSU है? PSU मतलब पब्लिक सेक्टर यूटिलिटी. ठीक है, जो कि ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लॉन्च करने जा रही है या फिर बनाने जा रही है मथुरा में. ए NTPC, बी IOCL, सी BPCL या फिर डी HPCL. तो इसका राइट आंसर है IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड. स्टेट ओन्ड PSU, public sector utility, Indian Oil Corporation Limited IOCL would build the country's first green hydrogen plant at Mathura refinery. ठीक है, मथुरा रिफाइनरी जो है इसके अंडर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है वो बिल्ड करने जा रही है IOCL. ठीक है, जो कि एक पब्लिक सेक्टर यूटिलिटी है. दिस इज अ पार्ट ऑफ कंपनीज प्लान टू प्रोड्यूस क्लीनर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, जिससे कोई हार्म ना हो, मतलब लेस हार्म हो, इस तरह का प्रोडक्शन होना चाहिए रिफाइनरी में. इसीलिए ये ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है उसे लॉन्च किया जा रहा है. While no fuel is 100% safe, मतलब कोई फ्यूल 100% सेफ नहीं होता, बट ग्रीन एनर्जी या फिर ग्रीन हाइड्रोजन हैज बीन शोन to be safer than conventional fuels in multitude of aspects. हाइड्रोजन इज नॉट टॉक्सिक अनलाइक कन्वेंशनल फ्यूल्स. ठीक है, मतलब कन्वेंशनल फ्यूल्स जो होते हैं वो घातक होते हैं, वो हार्मफुल होते हैं, लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन जो है उससे कंपैरेटिवली बहुत कम हार्मफुल होता है. ठीक है, हाइड्रोजन ये जो है वो टॉक्सिक नहीं होता जो कि कन्वेंशनल फ्यूल्स होता है. ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? 100% कोई भी फ्यूल सेफ नहीं होता, मतलब भले वो ग्रीन हाइड्रोजन भी हो वो भी सेफ नहीं है, बट कंपेयर टू कन्वेंशनल फ्यूल्स ये सेफर है देन कन्वेंशनल फ्यूल्स. ठीक है, मतलब ये ज्यादा सेफ है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड हैबिटेट डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? ठीक है, वर्ल्ड हैबिटेट डे किस डे को मनाया जाता है? फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर, फर्स्ट संडे ऑफ अक्टूबर, लास्ट संडे ऑफ सितंबर या फिर लास्ट सैटरडे ऑफ सितंबर? तो हैबिटेट डे जो है वो मनाया जाता है फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर. ठीक है, मतलब इस साल का जो वर्ल्ड हैबिटेट डे है वो मनाया था 4 अक्टूबर को, है ना. एवरी ईयर फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर इज ऑब्जर्व्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस एज वर्ल्ड हैबिटेट डे. ओके, हर साल पहला जो सोमवार होता है, पहला जो मंडे होता है हर अक्टूबर का, उसे ऑब्जर्व किया जाता है एज ए यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड हैबिटेट डे. ठीक है, to stress on the basic right of all the adequate shelter and highlight the state of our habitats. Okay, इस साल का जो वर्ल्ड हैबिटेट डे है वो मनाया था 4 अक्टूबर को. ठीक है, इसका थीम जो था वो था एक्सीलरेटिंग अर्बन एक्शंस फॉर कार्बन फ्री वर्ल्ड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी हेडक्वार्टर? हाँ, वर्ल्ड का जो एनर्जी एजेंसी हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? जिनेवा, पेरिस, दोहा या फिर काठमांडू? तो इसका राइट आंसर जो है वो है पेरिस. ठीक है, एनर्जी एजेंसी हेडक्वार्टर जो है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी वो पेरिस में पाया जाता है. ओके, IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी is an intergovernmental organization established in the year 1974, headquartered at Paris, France. Okay, it was established in the framework of Organization of Economic Cooperation and Development OECD. इसके अंडर इसे इस्टेब्लिश किया गया था, इसके फ्रेमवर्क के अंडर इसे इस्टेब्लिश किया गया था. किसे इस्टेब्लिश किया गया था? IEA. ओके, IEA has invited India to become its full-time member
इंडिया को इसने इनवाइट किया था इसका फुल टाइम मेंबर बनने के लिए। If India becomes a full-time member of the forum, then it would be required to maintain a strategic oil reserves of 90 days. Okay, अगर इंडिया इसका मेंबर फुल टाइम मेंबर बनता है तो उसके लिए क्या रिक्वायर्ड होगा? टू मेंटेन स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स ऑफ 90 डेज। 90 दिन का स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व इसमें मेंटेन करना बहुत जरूरी पड़ सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल हैंडलूम डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? नेशनल हैंडलूम डे जो है वो कौन से डेट को ऑब्जर्व किया जाता है या फिर कौन से डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? 6 अगस्त, 8 अगस्त, 5 अगस्त या फिर 7 अगस्त? ये तो कंफर्म है कि ये अगस्त में सेलिब्रेट किया जाता है ना? तो डेट कौन सा है? इसका डेट है 7 अगस्त, है ना? 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे जो है उसे ऑब्जर्व किया जाता है। ऑन 7 अगस्त 2021 टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने ये सेलिब्रेट किया था 7th नेशनल हैंडलूम डे। On this day, the handloom weaving community will be honored for their contribution in socio-economic development of India, है ना? इंडिया का जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है जिसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? तो हैंडलूम वीविंग कम्युनिटी का, है ना? तो इनकी कंट्रीब्यूशन को ऑनर करने के लिए ये हैंडलूम डे जो है नेशनल हैंडलूम डे ये 7 अगस्त को एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। 3 हैंडलूम क्राफ्ट विलेजेस, मोहपारा विलेज डिस्ट्रिक्ट गोहघाट इन Assam, second is Kovalam in Thiruvananthapuram, Kerala, and third is Kanihama Budgam in Srinagar, are being set up by the ministry in collaboration with the respective state governments. Okay. Next question, Poshan Ma is celebrated in which month in India? पोषण माह करके एक डे है उसे सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में, वो किस मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर? तो इसे सेलिब्रेट किया जाता है सितंबर में। तो देखते हैं ये पोषण माह होता क्या है। द मंथ ऑफ सितंबर इज ऑब्जर्व्ड एज पोषण माह, इन एग्जांपल न्यूट्रिशन मंथ इन इंडिया एवरीवेयर। ठीक है, पोषण माह मतलब क्या है? न्यूट्रिशन मंथ। ठीक है, पोषण मतलब न्यूट्रिशन और माह मतलब मंथ। दिस ईयर इट इज सेड टू बी सेलिब्रेटेड विथ 4 थीम्स अक्रॉस 4 वीक्स ऑफ द मंथ। हर एक वीक में अलग अलग थीम रखा है इस साल में, है ना? पोषण अभियान is Government of India flagship program to improve nutritional outcomes of children, adolescent girls, pregnant women and lactating mothers. Mission Poshan 2.0 has been announced in the budget 2021-22 as an integrated nutrition support program. Okay. So next question is, which is the first Indian state or UT to achieve 100% first dose coverage for COVID-19? मतलब COVID-19 का जो वैक्सीनेशन है उसमें ऐसी कौन सी स्टेट है या फिर यूटी है जिसने 100% पॉपुलेशन को फर्स्ट वैक्सीनेशन डोज लगवाया है? गोवा, लद्दाख, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड या फिर पुदुचेरी? तो लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है जिसने 100% पॉपुलेशन को फर्स्ट डोज कवरेज किया है, ठीक है, इन द कोविड-19 वैक्सीनेशन. So administration of UT of Ladakh has achieved 100% vaccination with the first dose of COVID-19 vaccine to all its eligible population. In example, people above 18 years. मतलब 18 years के आगे जितने भी लोग हैं in Union Territory of Ladakh उन्हें 100% वैक्सीनेशन दिया गया है of the first dose of COVID-19 vaccine. ठीक है, हेल्थ केयर वर्कर्स हो या फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स हो या फिर 18 to 45 एज हो या फिर एबो 45 हो, ये सारे लोगों को वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज जो है वो लगवाया गया है. सो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख इज द फर्स्ट स्टेट विच इज 100% covered vaccination in the first dose of COVID-19 vaccine. थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ नए करंट अफेयर सेशंस के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ. बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट.